A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed various accounting treatment related to the chapter number 4, that is an admission of a new partner. In this chapter, firstly we discussed what are the concepts related to the admission of a new partner and what are the reasons beyond why we admitted a new partner in the firm, and what are the rights of the partner in the partnership firms at the time of admission of new partner. As well as we discussed all the 4 cases related to the calculation of the new profit sharing ratio at the time of the admission of a partner, and in the last video we discussed about the adjustment of goodwill on the admission of a new partner. Now we are moving to the third and very important topic of this chapter, that is an revaluation of assets and liability. This topic is already discussed in the chapter number 3. You know very well, at the time of change in PSR, every partnership firm must revalue their assets as well as reassess their liabilities. And if there is any profit or loss on the revaluation of assets and liability, in this situation, this profit will be distributed by the partner. And there are basically 2 situations when partnership firm want to record the revised value, and number second, when partnership firm does not want to record the revised value. Similarly, at the time of the admission of a new partner, partnership firm must revalue it as assets and liability. So please note down, at the time of admission of new partner, firm must revalue their assets and liability. यानी जिस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसी तरह से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की भी सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करती है, मतलब फिर से पता करती है कि एट प्रेजेंट टाइम उसकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है. एंड इफ there is any profit or loss on revaluation, if there is any profit or loss on revaluation, it must be distributed by old partner in their old ratio. मतलब इस सिचुएशन में अगर कोई भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. उसमें क्या था, 2 सिचुएशन थी. यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करने पे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बेसिकली यू नो वेरी वेल, इसके पहले जो केसेस हमने पढ़े हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज वेल एज वी डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें भी कई केसेस थे, बेसिकली 3 केसेस थे और 2 एडिशनल केसेस थे. इन सारे केसेस को पढ़ने के बाद ही वी विल सॉल्व द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मिक्स क्वेश्चन. जनरली एग्जामिनेशन में 6 to 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आता है related to this chapter. So it is a very important chapter for us. So how we will record the revaluation of assets and liability? It is just like a chapter number 3. Chapter number 3 की तरह ही होता है, एंट्रीज भी वही पास होती हैं, ठीक है. तो अगर आप चाहें तो वही सेम नोट्स भी यहाँ कॉपी कर सकते हैं, बट मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ. तो क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होती हैं?
at the time of the admission of a new partner, entries related to the revaluation of assets and liabilities are as follows. The first entry, अगर assets की वैल्यू क्या हो रही हो, increase हो रही हो, तो एंट्री क्या होती है, assets account debit to revaluation. नंबर सेकेंड, जब assets की वैल्यू क्या हो, डिक्लाइन हो तो लॉस होगा, एंट्री क्या होगी, revaluation account debit to assets. थर्ड, अगर लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही हो, बढ़ रही हो तो इट इज लॉस, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. फोर्थ, अगर लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्लाइन हो रही हो, सो एंट्री विल बी अ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, कंसर्न लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. एंड नंबर फिफ्थ, वही सेम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री डिक्टो वैसी ही हो गई जैसे चैप्टर नंबर 3 में हुई थी. उसके बाद फिफ्थ, if there is a profit on revaluation है, अगर revaluation पे profit है तो in this situation हम क्या करते हैं, revaluation के profit को transfer कर देते हैं in case of the admission of a new partner, old partners capital account में, वो भी किस रेशियो में, old ratio. वहां पर क्या होता था, profit and loss का distribution is totally depend on the condition. If they want to record the revised value, so ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स रिकॉर्ड करते थे, और इफ दे डू नॉट वांट टू डिसाइड द रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू, तो सिचुएशन में वो क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस को गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. उसके बाद हम लोग चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डिक्टो प्रिपेयर्ड एज लाइक इट इज इन चैप्टर नंबर 3. अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए इस क्वेश्चन में, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट चैप्टर में हमने बनाया था. पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो ये प्रॉफिट है, सो क्रेडिट साइड में. लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट साइड में. मैंने एरो से शो किया है, बट आपको वहां पे लिखना होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. उसी तरह से एसेट्स की वैल्यू अगर घटेगी तो उसे हम डेबिट साइड में प्लेस करेंगे, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसे लोग ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे रिकॉर्डेड एसेट्स. और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे ओल्ड रेशियो. लॉस होता तो क्या करते थे, क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो. मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो दिस इज एन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. सो प्लीज नोट डाउन. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic related to this chapter is, after discussing an revaluation of assets and liability, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही गहरा रिश्ता है, कह सकते हो, एक बहुत ही बड़ा रिलेशन. अगर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 अच्छे से डिस्कस किया है तो चैप्टर नंबर 4 हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. एज यू कैन सी दैट कि कई सारे केसेस तो वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे हम करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द this chapter is accounting treatment of reserve accumulated profit or losses. So you know very well, at the time of change in PSR, if there is any general reserve, accumulated profit or accumulated losses are appear in the books of account, are appear in the balance sheet, because the reserve and accumulated profit will be shown in the liability side of the balance sheet, whereas the accumulated losses will be shown in the credit side of the asset side of the balance sheet. So it will be distributed and written off by the partners in their old ratio. If they want to decide, if they want to distribute such kind of the reserves, accumulated profit and losses, and if they do not want to distribute such kind of reserve, accumulated profit and losses, so in this situation हम gaining and sacrificing ratio में इसको distribute कर देते हैं. But
at the time of admission of a new partner, at the time of admission of new partner, if there are any reserve, accumulated profit or losses appeared in the balance sheet of firm, it will distributed or written off by old partner in their old ratio। मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम अगर कोई रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ऑलरेडी बैलेंस शीट में है फर्म के, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो, याद रखिएगा। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्लीज नोट डाउन द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री विल बी योर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to old partners capital account in which ratio? In old ratio। Similarly अगर कोई accumulated losses है या deferred revenue expenditure है, तो उस सिचुएशन में old partners capital account debit to profit and loss account to deferred revenue expenditure like advertisement suspense account। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? deferred revenue expenditure। उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे भी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। सो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएल, और इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ पीएल अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो प्लीज नोट डाउन। सो यू कैन सी दैट on the admission of a new partner, if there is any profit and loss, debit or credit balance or general reserve, whatever such kind of reserve like a general reserve or reserve fund, it will be distributed or written off by old partner in their old ratio। And please note down the one thing in your copy very carefully। Please note down the accounting treatment of workman compensation reserve and investment fluctuation reserve। You know very well what is workman compensation reserve and what is investment fluctuation reserve। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Specific reserves। Accounting treatment of workman compensation reserve and IFR, that is a specific reserve, are same like चैप्टर नंबर, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट WCR IFR का ट्रीटमेंट सेम है जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उससे हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स डिवाइड करेंगे। बट इसमें याद रखना है, इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। न्यू पार्टनर को वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एंड देयर इज अ वेरियस केसेस when claim is given, when claim is equal to the reserve, when claim is higher than the workman compensation reserve, and in case of the IFR you know very well, हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन पे, और अगर बुक वैल्यू कम है तो हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू से कितना कम है, IFR के इक्विवेलेंट है, IFR से कम है क्या IFR से ज्यादा है। So there are various cases related to the accounting treatment of workman compensation reserve and investment fluctuation reserve। So accounting treatment of workman compensation reserve and IFR are same like chapter number 3। जैसे chapter number 3 में पढ़ा हुआ है, chapter number 3 मतलब change in profit sharing ratio। जैसे chapter number 3 में हमने इसका accounting treatment पढ़ा है,
वो एकदम डिक्टो यहाँ पे वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो वही ट्रीटमेंट आप यहाँ लिख लो या अपने कॉपी में अपने माइंड में नोट डाउन करो। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। So in this question you can see that we discussed the two topic. The first will be an accounting treatment of revaluation and reassessment of liability on the admission of a new partner, as well as we discussed about the accounting treatment of general reserve, specific reserves, accumulated profit and losses on the admission of a new partner. So let's we discuss the few practical problems related to these chapters. The question number 51 of your book. So please see it very carefully. A and B were in partnership form, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. So A and B are two partners, and their profit sharing ratio will be of 3:1. And after that they decided C as a new partner on the following terms, and the terms are: C brings 1 lakh as his capital, 50,000 for goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. That the value of land and building to be appreciated by 15%, and that the stock and machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively. Provision for doubtful debts be made at 5%. For 15,000 be provided for an unforeseen liability. C to be given 1/5 share, and profit sharing ratio between A and B to remain the same. It means C आएगा 1/5 के लिए, whereas the profit sharing ratio जो A और B का रहेगा वो सेम रहेगा, यानी 3:1 ही रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्लियर लिखा है C has to be get 1/5 और A और B का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सेम वही रहेगा जो पहले था। एंड इन दिस क्वेश्चन 11,000 to be received as commission hence to accountant for, and the balance sheet also given. So give necessary journal entry, ledger account and the balance sheet of the newly constituted firm. So on the admission of a new partner you can see that lots of additional information given in this question. So पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले एंट्री पास करेंगे, एंट्री ऑन एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन पे क्या क्या एंट्री हो, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जब ये जनरल एंट्री क्वेश्चन पूछता है तो वी हैव टू कंफ्यूज अबाउट कि सर कौन सी एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री इसमें पास होगी एंड सी के एडमिशन की। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर सी एज अ कैपिटल कितना लेकर आ रहा है 1 लाख और गुडविल कितना ला रहा है 50,000। सो 1,50,000 amount, total amount brought by C. After that you know very well this premium for goodwill will be distributed by A and B in which ratio, in their sacrificing ratio, and the premium for goodwill will be 50,000 and their sacrificing ratio, because in this situation the old ratio will be 3:1, CR 1/5 के लिए, so old ratio will be taken as a sacrificing ratio. So sacrificing ratio in this situation is 3:1, so 3/4 12,500 37,500, and after that the next information given in this question, half to be withdrawn by the partner, आधा पैसा पार्टनर ने निकाल लिया, सो A's कैपिटल गुडविल का जो पैसा मिला था उसका हाफ ऑफ उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, तो 50 का हाफ कितना हुआ 25, 37,500 का हाफ कितना हुआ
18,750, 6,250. So this is an entry on the admission of a C related to this question. After that हम क्या करेंगे, we will pass the journal entries related to the revaluation. So the next type of the entry is entry related to revaluation of assets and liability. Assets and liability से रिलेटेड एंट्री पास करना. सो एंट्री नंबर 4 क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है. एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ी है. सो लैंड एंड बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे. दूसरा कह रहा है स्टॉक, मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है. तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है. सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 3,30,000. 3,30,000 का 15%. ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो आप 330 मल्टीप्लाई बाई 15 कर लीजिए. 0 that is in 0594 4,900 49,500 is a profit on revaluation due to the increase in the value of land and building. Fifth will be stock, machinery and fixtures be reduced by 5, 7 and 5%. तो उसकी होगी revaluation account debit to land and building, furniture and fixtures. So land and building की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है? 7%. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू तो डिक्रीज हुई है. स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है. सॉरी, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है और मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू डिक्रीज. मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू. तो स्टॉक कितना है? 180. 180 का 7%. 12,600. And now the 5% of the machinery and fixtures, 2 lakh का 5% is a 10,000. Apart from this, the adjustment number C says that a provision for doubtful debts to be made at 5%. यानी आपको प्रोविजन भी बनाना है. तो ये भी लॉस है, तो उसकी भी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. 5% आपको बनाना है बुक डेब्ट्स का. तो 2 लाख का 5%, ये भी हो जाएगा आपका 10,000. मैंने जितने लॉसेस हैं सबको एक साथ लिख दिया. उसके बाद 15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी. 15,000 एक अनफोर्सीन लायबिलिटी है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया. आप चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं सारे लॉसेस को एक साथ लिख दिया. कितना लॉस हुआ था? 15,000. और एक फायदा और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. पॉइंट नंबर F, that 11,000 is to be recorded, is to be received as commission, hence to be accounted for. मतलब एक कमीशन है, accrued commission which is known as any commission which is received but not, which is earned but not received. तो ये accrued commission हो गया. इसको भी हम लोग प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं. तो आप यहाँ इसको प्रॉफिट में ऐड कर सकते हैं. कितना accrued commission है? 11,000. सो ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट 60,500. और लॉस कितना हो गया? इसको आप ऐड कर लीजिए. 006 47,600. So this is the loss on revaluation, sorry, profit on revaluation. This is the loss on revaluation. तो revaluation डेबिट है यानी लॉस है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है. एंड आफ्टर नंबर 6 विल बी जो प्रॉफिट एंड लॉस है. अगर आप देख लो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है,
तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स यानी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन विच रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो विल बी 3/4 1/4। निकाल लो 60,500 माइनस 47,600, ये आपका आ रहा है 12,900। This is a distribution of profit or revaluation among old partner in their old ratio. So आपने दो स्टेप क्लियर कर लिए। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर क्वेश्चन में पूछता है यू हैव टू पास द जनरल एंट्री, सो पहले आप न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे, फिर आप एंट्री पास करेंगे रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। तो हमने एडमिशन से भी एंट्री पास कर दी, रिवैल्यूएशन से भी एंट्री पास कर दी। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है यू हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट किसका बनेगा ये भी ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में जनरली ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फॉलोइंग लेजर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तीसरा कैश या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फोर्थ हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजर अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। तो ये याद रखना है आपको, ये जो मैंने भी थ्योरी में लिखवाया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हम कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो 51 में आपने देखा कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडमिशन से रिलेटेड एंट्री और एक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 51 का सिर्फ और सिर्फ क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं? फर्स्ट लेजर अकाउंट, दैट इज एन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख ही रहे हो साफ साफ कि जहां प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या प्रॉफिट हुआ है? एक एक्रूड कमीशन का प्रॉफिट हुआ है और एक लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट हुआ है। एक्रूड कमीशन का कितना हुआ? 11,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 49,500, और लॉसेस कहां क्या हुआ है? स्टॉक 12,600, मशीनरी एंड फिक्चर्स 10,000, provision for bad debts 10,000, unforeseen liability 15,000, और जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसे आपने क्या किया है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से पार्टनर्स में बांट दिया है, ए और बी में। किस रेशियो में बांट दिया है? उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 9675 3225, एंड टोटल इज 60,500 60,500। सो आपने पहला लेजर अकाउंट बना लिया है ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो प्लीज नोट डाउन। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बचेगा? आफ्टर दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इस क्वेश्चन में यही बोला है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो डोंट वरी, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये टॉपिक आप समझ लीजिए। So in today's video you can see that firstly we discussed the accounting treatment related to the revaluation of assets and reassessment of liability on the admission of a partner, as well as we discussed the accounting treatment of general reserve, specific reserve, accumulated profit, accumulated losses on the admission of a new partner, and we solved at least 50% solution of the question 51, and in the next video
हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन पार्ट हमने बना लिया, नेसेसरी जनरल की टास्क कर दी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो फर्स्टली वी कवर्ड ऑल द 3 स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 51। इन 51 का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit, accumulated losses and general reserve as well as the specific reserve. And thereafter we will move to the next topic, and the next topic is a very important topic of this chapter, that is an capital adjustment. So आज के इस वीडियो में इतना ही. I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care.